ओके, गुड इवनिंग। तो बताओ, जो भी डाउट्स हैं, चाहे मॉक के हो या बाहर के हो या पीवाईक्यू के हो, जो भी आपको डिस्कस करना है आप पूछो। है किसी को डाउट पूछना है? हाँ सर, बोलो। पहले तो सारे मॉक टेस्ट कंप्लीट करो, जितने भी मॉक टेस्ट अपलोड हुए हैं उसको कंप्लीट करो, फिर दोबारा उसी को सॉल्व करो जो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुए हैं। देन उनमें से कुछ क्वेश्चंस होंगे जो आपसे नहीं होंगे, देन यू आस्क मी। पीवाईक्यूज रिपीटेडली सॉल्व करो, है ना, सिलेबस रिवाइज करते रहो, तभी जाके ठीक रहेगा। हाँ जी श्रीनाथ। तो और डाउट वो पूछो जो तुम्हारे जेन्युइन डाउट है ना, ये है। so the question is, x एक random variable having given this, consider a test function. Okay, so test function has these values. So if jx is the test function, ठीक है, तो ये आपका jx है। So what they are asking, so पूरा क्वेश्चन भेजते हैं फोटो, क्या पूछ रहा है, क्या निकालना है? एक मिनट, इसमें कुछ नहीं समझ रहा है, like I don't know how to approach this question. So what is definition of size of a test? एक्सपेक्टेशन होगा ना इस टेस्ट फंक्शन का जी, इसका क्या मतलब है? द मीनिंग इज x1 2 3, लेकिन ये तो कुछ क्वेश्चन में गलती नहीं लग रहा है। आई थिंक इट शुड बी टोटल तो 1 होना चाहिए ना, सिंगल रैंडम वेरिएबल x। Sir, I have posted the same question right हाँ at the base. yes yes, so they have given like this. So I think one probability है, then rejecting h naught when the meaning is like this, then critical reason is what? अगर ऐसा है then we can think of this, or you can say this. So probability 1 है ना? Sir, this expectation of this test function, हाँ ये it is alpha ना या or it is critical region. Is there any difference between this critical region and size? हाँ, generally when we take randomized or non-randomized test, still I think we have to make it, ये ऐसा होना चाहिए कि सम 1 हो जाए, 1 पे 2 पे तो ज्यादा हो जाएगा ना। jx is a function, so if you take the expectation, so what is expectation of jx? If I ask you, Might be that x is equal to 1, 2, it might be 1 by 2. okay, 1 minute. So size you were taking, so expectation of jx when मतलब under h naught है ना, under h naught you talk. So what is expectation of jx?
So Jx is a random variable. Let's say it is y, for example. Okay. So now how do you write expectation of y? You have to use under h naught. So what is expectation of y? So y Yeah. What are the value of y? 1 probability y being 1, or 1 by 4 probability y being 1 by 4, right? 0 is otherwise, plus 0 into probability y being 0. This is the probability. So now ये हो जाएगा. अब so solve this. 1 into probability y is 1. y को 1 होने की क्या probability है? The same probability x being 1 or 2. 1 by 4 x probability of y being 1 by 4 means x being 3, and then rest is 0. So now what is the probability of x being 1 or 2? 1. No. See the PMF. Let's see the PMF under h naught. 0.01. Yes, so tell me that. So 0 and 1, you add probability at 0 or 1, है ना? Okay. So sorry, 1 and 2 ना? तो 1 and 2. तो 0.1, 0.01, 0.01. 0.01. हाँ, so कितना हो जाएगा? 0.02, right? हाँ. Plus 1 by 4 into 0.01. so x बराबर 3. So 3 पे कितना है? 0.01. 0.01. So what is the final answer? 0.2. 0.025. हाँ, tell me. 9/4 into 0.01 कितना आएगा? 8.5. 2.0 ना? ये. Yes, sir. Okay. So now you tell. So what is the size? Size is alpha. 9/4 is what? Is it correct? I don't know, sir. You know. I say who will know? You calculate na. Who will know? It is your doubt, so you have to solve. You don't know. Tell me the correct answer of this. It's a 2 plus, it's okay na, 2.25. The 2.25 means what? How will you calculate in the exam? Suppose this comes in exam, how will you do? What is the value of this? Tell me. 0.225. You know that much statistics and 0. 0.225. So who will calculate this? Examiner will do in for you in exam. So why don't you do now? So see, this is the size. What are the options? J has size this, yes. So that is the only option. Other has size. So this is the only option where And D. D has size. Most powerful test means what? So now we have to decide is it a most powerful test or not. So it is simple versus simple. Okay. So by Neyman-Pearson lemma it will be most powerful test. Okay. So it will be most powerful test for. So what is saying? This has size this and power this. The power you can calculate similarly. Power expectation of Jx under H1. Okay, sir. So under H1 you calculate power. So just here you were taking probability from H0. Now you take probability from H1. Yes. So calculate in similar way.
नेक्स्ट बताइए जी, इनका डाउट है, डाउट है आप लोगों को? सर सेंड किया होगा। कहाँ? सीयूटी के ग्रुप में। इतने सारे आ रहे हैं, पता है किसका कौन डाउट है? तुम्हारा डाउट है ना? हाँ बताइए इसमें क्या डाउट है? सर कंपेयर करके लिखा रहे हैं अल्फा बीटा गामा का वैल्यू, वो बहुत लेंदी जा रहा है सर, एग्जाम में है तो उसे कैसे करेंगे ये पूछना था। तो ये क्वेश्चन आपका है 2x², नहीं चेक करो ठीक से ना सही लिख रहा हूँ कि नहीं। सो 2x³ है ये, प्लस 7x² प्लस x माइनस 6 इज इक्वल टू, सो 2x³ प्लस 7x² प्लस x माइनस 6 इज इक्वल टू 2 टाइम x माइनस 2 का होल क्यूब प्लस अल्फा टाइम x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस बीटा टाइम x माइनस 2 ठीक है। नाउ दिस इज इक्वेशन फॉर एनी x। सो मेरे भाई अगर मैं इसमें x की जगह 0, x की जगह चलो 2 पुट कर दूं तो क्या बनेगी बताओ? तुम्हारे पास पेन पेपर है ना? यू कैलकुलेट एंड टेल मी द आंसर। x के प्लेस पे 2 पुट करो, बताओ क्या एक्सप्रेशन आएगा? सिंप्लीफाई करके बताओ फाइनल। राइट साइड 0 हो जाएगी ना, इधर 0, ये गामा बचेगा। सो गामा इज इक्वल टू, यहाँ x को 2 रख के बताओ, एग्जैक्टली कैलकुलेट करके बताओ, तुक्का नहीं लगाना, पेन पेपर से पेन लिख के बताओ एग्जैक्ट क्या आएगा। आएगा सही? और चाहिए? x को 0 रख दो, 40 आएगा। एक और इक्वेशन आ जाएगी, x को 1 रख दो। कितने कितने अननोन है यहाँ पे? 3। तो कितना इक्वेशन चाहिए तुम्हें? 3। हाँ तो 3 नंबर चूज कर लो अपने मर्जी से, कोई भी अपना 3 फेवरेट नंबर चूज करो, पुट करो, आ जाएगा। तो ये पहली इक्वेशन, दूसरी इक्वेशन, तीसरी इक्वेशन, x तो गायब हो गया तो अल्फा बीटा गामा होगा तीनों में, हो जाएगा। बस। हाँ जी नेक्स्ट इनका डाउट है बताओ। ये ग्रुप में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, मैं सारा सॉल्व नहीं करूंगा, लोग ऐसे भेजते रहते हैं ना, तो इनके डाउट से बताओ। 41 था, 41 नंबर। 41 कहाँ है? किसका 41? सब भेजा फिर से। हाँ फिर से ऐसे, ठीक है। हाँ the minimum value of variance of this for all value of a, minimum value of this quantity, so पूछ रहा है कि the minimum value of variance of y minus alpha x, ठीक। so बोल रहा है कि the minimum value of variance of y minus alpha x, so the minimum value of variance of y minus alpha x for all value of alpha हो गया ना a, अच्छा यहाँ पे a है। तो इस फंक्शन को मिनिमाइज करना है, क्या करोगे खोलोगे तो ये हो जाएगा वेरिएंस ऑफ y प्लस a स्क्वायर वेरिएंस ऑफ x, आगे क्योंकि इसने बोला तो है नहीं इंडिपेंडेंट इंप्रूवमेंट, कुछ बोला है नहीं बोला ना, तो क्या आएगा? ठीक, तो ये मान लो तुम्हारा फंक्शन ऑफ a है, ठीक। सो नाउ द फंक्शन ऑफ a इज ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई करोगे GA क्या आ जाएगा?
y को मैं सिग्मा 2 स्क्वायर लिखता हूं, ठीक है, वेरिएंस y को, प्लस a स्क्वायर वेरिएंस x को सिग्मा 1 स्क्वायर माइनस 2a रो सिग्मा 1 सिग्मा 2, ठीक। अब मेरे भाई ये बताओ, ये एक फंक्शन है कैलकुलस का, क्या तुम इसमें पॉइंट ऑफ मिनिमा निकाल पाओगे? यस सर। कैसे? बट सर सिग्मा 1 के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके सिग्मा 2 के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट। अरे दिमाग में खराब है तुम्हारा, किसका फंक्शन है ये? सर ये सॉरी ये के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। ये तो a का फंक्शन है ना, और a की वैल्यू पूछ रहा है, तो क्या करोगे अब? g डैश a निकालो, जीरो पुट करो, a की जो वैल्यू आएगी वही तुम्हारा ऑप्शन आएगा सीधा सीधा। एक लाइन बचा है, मैं कर ही देता हूं, तुम लोगों का कोई भरोसा नहीं है। एक्चुअली मेन दिक्कत क्या है ना, वो सीखते कौन से बच्चे हैं, जो क्वेश्चन मैं कर रहा हूं, मैं फिर से बोल रहा हूं, हर क्लास में ये बात बोलता हूं मैं, कि तुमने डाउट आया, तुमने मुझसे पूछा, मैंने सॉल्व कर दिया, इसके बाद इन सारे डाउट्स को अगर तुम फिर से सॉल्व कर रहे हो और अगर कर पा रहे हो तो तुमने सीख लिया, अदरवाइज तुमने देख लिया और 4 दिन बाद भूल गए, 5वें दिन फिर ये क्वेश्चन तुम्हारा डाउट रहेगा। क्योंकि दिमाग बहुत ज्यादा रिटेन नहीं करता, रिटेन क्या करता है, जो तुम जितना खुद से तुम एफर्ट्स करते हो वो दिमाग रिटेन करता है, दुनिया तुम्हारे लिए कितना एफर्ट्स के दिमाग कुछ समय भूल जाता है ना, ये चीजें हैं। सो ये सब क्वेश्चन अभी 4 दिन बाद फिर तुम्हें यही डाउट हो सकता है फिर से, तो उसके लिए ये सब फिर दोबारा सॉल्व करो, है ना। सो जो भी डाउट्स है, मतलब एटलीस्ट क्लास के बाद आपको इतना फील हो ना कि जो डाउट क्लास के पहले थे वो डाउट नहीं रहे, वो आपने सीख लिया। सो दैट इज इंपॉर्टेंट कि आपको जो पहले डाउट था जो आपसे नहीं हो रहा था, क्लास के बाद वो आप सॉल्व कर पा रहे हो, सो तब क्लास का बेनिफिट है, ये चीज है, मतलब टाइम वेस्ट है। अब ये सब सॉल्व अब मैं छोड़ दूंगा, फिर तुम बताएं तुम भी छोड़ दोगे कि हाँ सर हो जाएगा, कर लेंगे, एग्जाम में आएगा तो कर लेंगे, इस तरह से। 2a सिग्मा 1 स्क्वायर माइनस 2 रो सिग्मा 1 सिग्मा 2, जीरो पुट करो, यहाँ 2 काट दो, a कितना आ गया, रो सिग्मा 1 सिग्मा 2 अपॉन सिग्मा 1 स्क्वायर, यही है a की वैल्यू। सो रो काट दो सिग्मा 1 सिग्मा 2 अपॉन सिग्मा 1, बताओ कौन सा ऑप्शन है? अभी तो सिंप्लीफाई करना पड़ेगा तुम्हें, इसने क्या किया हुआ है, ऑप्शन देखना पड़ेगा ना कि ये कौन सा, हालांकि तो ये आ गया। तो अच्छा, रो सिग्मा 1 सिग्मा 2 को तुम क्या लिख सकते हो, कोवेरिएंस, है ना। अच्छा ये रो क्या होता है? अच्छा मैं कोवेरिएंस अगर लिख दूंगा तो क्या बनेगा ये, तो इसको तुम्हें थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, और तो इसको सिंप्लीफाई करके तुम क्या लिख सकते हो, हालांकि आंसर तो यही है, लेकिन इसको सिंप्लीफाई करके क्या लिख सकते हो तुम, इसने कहा वेरिएंस y बना लो, तो वेरिएंस y का मतलब है रो सिग्मा 2 स्क्वायर बाहर कर लो, तो यहाँ क्या हो जाएगा, सिग्मा 1 सिग्मा 2। अब इसको तुम क्या लिख सकते हो ये देखना पड़ेगा सॉल्व करके। सो ये रो क्या होता है, कोवेरिएंस बिटवीन एक्स वाई अपॉन सिग्मा 1 सिग्मा 2, यहाँ से इसको ब्रेक करो, तो ऑप्शन बनेगा। ये सर हो जाएगा, हाँ इसको सॉल्व करके ये में फंक्शन पुट कर देंगे ऊपर। हाँ देख लेना आप कैसे, आप तो इस तरह से। नेक्स्ट बताओ Sir, 75 before that problem. 75, where is 75? Sir, before this problem, this row problem. Okay, before this problem. So मतलब okay, alpha is probability of type 1 error, beta is probability of type 2 error. Then critical region is said to be unbiased. Actually unbiased test is not part of CUET syllabus nor JAM syllabus. It is a part of GATE syllabus or CSIR NET syllabus. So unbiased test is not part of JAM GATE syllabus. But still you should know कि when can you say critical region unbiased. The thing is power should be more than equal to size. Simple, remember. So what is power? 1 minus type 2 error, right? And size is type 1 error.
So 1 is more than equal to alpha plus beta. So alpha plus beta is less than equal to 1. So this is the meaning of unbiased test. So unbiased test is in GATE or NET, not in JAM or CUET. ठीक है ना? So I teach 4 courses: CUET, JAM, NET, GATE, NET. So GATE and NET are master level exam. So it is in that, not in bachelor's level exam. CUET and JAM are bachelor level exam, BSc level exam, and GATE and NET are MSc level exam. So after MSc, these 2 exams are useful. So it is in part of GATE. Yeah. I have sent 2 questions at the bottom. Yes. So for a random sample of size 2 from normal 0 sigma square population, the expectation of first order statistics. So expectation of first. इसमें CDF, don't we need the CDF part in it? Because it's an order statistic, so for order statistics, fx has to be found out, the distribution of the order statistic. And you have to put the equation that is for expectation. Okay, direct result. ये सब theorem based questions हैं कि in case of normal distribution, तो in case of normal distribution, what is the पर CDF का कुछ equation है, general equation. नहीं, नॉर्मल में स्टैंडर्ड कोई डायरेक्ट एक्सप्रेशन नहीं है. Because in exponential there is 1 minus e raised to negative 1 there. हाँ, वो इंटीग्रेशन ना फिर उसका CDF. Direct expression, integration is not easy to calculate directly. So how will you do? Okay, so 1 minus CDF integration. No, it's actually if you have to see the proof. So if I write the data, you have to write the. You just have to search. Okay, this is a general result. Yes. So in case of normal mu sigma square, you just need to see the theorem. So if x1, x2, xn are IID normal mu sigma square, so what is the expectation of first order statistics? This is that result. Maybe in general expectation of rth order statistics. This is result, and so on. In the end, expectation of nth order statistics. See Gupta Kapoor book, you may find it in that. Next question. Yes. So the next question is, XIR IID random variable with CDF fx is equal to x. So it is uniform 0 1. CDF is x na. So x1 x2 xn are IID uniform 0 1. ठीक है? And the PDF. So this is solved question. Again, this is direct result, and you can also solve. I don't think this will come. So R is the nth order statistics minus first order statistics. This is the R, and so the question is the PDF of the range. Okay. So it is solved question in Vikar Vadgi book, so I can tell you the page and that also. You can directly solve. What is the distribution of nth order statistics here? Beta n minus r. Beta first kind n comma 1. Beta first kind 1 comma n. Okay, so this is the result, first and nth order statistics. Now difference, so how do you find? So if you see the proof, R is this, for example I assume T is, for example, first order statistics. Then you have to find joint of R and T using Jacobian method. So there is a first order statistics and nth order statistics. So these are result based question actually. Let's say whatever you want to write, in terms of, so use let's say RT or XY something. मान लो ऐसा है. So in terms of this you have to somehow you have to multiply this. Let's say हाँ. Jacobian. ये dx by dy हुई है. Yes, Jacob. Don't you know Jacobian?
Yes. Yes, it is del of. X value. Suppose I say t, है ना? So it is a first. You can name first and nth order stat. It is like xy, for example. So first order statistics, nth order statistics with respect to r and t. So this determinant, okay. So proof is already in the. You just see the Viker Vadgi book. Let me tell you the page number. 1 minute. So in the order statistics topic, so this question is solved here. You can check page number. Chapter is order statistics. Yes, chapter is order statistics. So they are somehow finding page number 168. Page number 168. Example number 4. In the below you will see the answer is written. So answer is written. The PDF of R is the PDF of R what you need is given here. For example, in X if I write, so it is n minus 1 x raised to the power n minus 2 and then x1 minus x, and x is between 0 and 1, okay. So 0 otherwise. So you can see the topic section is, so this is 4 point section in the book is 4.7 order statistics, okay. You just see them, it is solved example. Answer. Next. So there is a question. Where is the question? This answer. बाकी लोग हैं किसी का डाउट? बाकी लोग बता सकते हैं, नहीं तो देखो। हाँ तो पूछोगे तो बताएंगे, ग्रुप में ऐसे बहुत सारे आता रहता है, मैं सारे क्वेश्चन सॉल्व तो ही करूंगा। जिनके डाउट्स हैं सो आपने ट्राई किया तो बताओ। You can solve the other one. The three numbers are drawn without replacement from 1 to 20. Every outcome is equally likely if one of the selected number is 8. So find the then probability that sum of the selected number is a multiple of 3. One of the selected number is, it is given. 8. So you select 3 numbers from 1 to 3 up to 20. So what is total number of way of selecting 3 number from 1 to 3 up to 20? Without replacement 20C3. Obviously without replacement. So 20C3. Now the event is one of 3 selected number is 8. Okay. So one of 3 selected number is 8. So the question they are asking, it is given, f is given. The question they are asking, the probability that sum of the 3 selected number is a multiple of 3. The sum of the 3 selected numbers is multiple of 3. So you tell me what is the possible sum? If you select 3 number from 1 to 20, so what are the possible sum? Along with 8. So I have done this one. All possible sum.
मिनिमम क्या होगा? 12. हाउ? So 8 plus I'm just asking, what are the, without thinking about these things, we select 3 number from first 20 natural number. So what are the possible sum of the 3 selected numbers? 6 से start होगा. हाँ 6 से स्टार्ट होगा, कहाँ तक जाएगा? 6, 9. 7 नहीं हो सकता? एक मिनट सर. सोचो. हाँ सर. हो सकता है कि नहीं? 7. 7 is possible or not? Not. So 3 into 2, 3 into 3. Likewise, there are 7 digits. Up to 18 now. 6, 9, 12, 15. Okay. So why 7 is not possible sum? Question is this. It is not possible sum. So what you are saying? Because so you are asking those numbers which are divisible by 3, right? No. I'm asking the all possible sum. Okay. There are 20 natural numbers, 1, 2, 3 up to 20. We select randomly 3 numbers. So what are the possible sum of these 3 selected numbers? And then the max, like, it can go from 3 to So 1, 2 or 5. अच्छा 1, 2, 4. 20 plus 19 plus 18. So कहाँ तक जाएगा? 20 plus 19 plus 18. Now what is that? 39. So you people are sitting somewhere, you have pen, paper, so you just calculate and tell. Yeah. 57. 57. 5, 7. हाँ सर. Okay. Now ये possible sum है. अब now they fixed that. So question is what? Question is probability of E given F. This is the question actually. So probability of E intersection F upon probability of F. Okay? बताइए. So sum of the 3 numbers that is multiple of 3. तो E में आएगा sum, possible sum की बात कर रहा हूँ, है ना? So I'm talking about sum. So E में जो sum होगा, that sum will be 3, 6, 9 up to 57 है. 57 भी possible है. So इस तरह से. अच्छा, F में क्या क्या है? F में one of the selected number is 3. तो ये मैं sum की बात कर रहा हूँ. Sum is. अच्छा, selected number 8 है. चलो E intersection F की बात कर लेते हैं. So one number is 8. 8 plus the rest must give you a multiple of 3. So did you try this question solving? Yes. So what was the problem? So I got like 6 combination where I got 3 combinations with 8 which is divisible by 3. Okay, let me rate. 8 is, so order is not important. Let's fix 8. So 8 to 1. Next is 1 and then I chose all those numbers. So 8 to 1. Then what are the possibility? 8 1 3. 3 2 8 1 6. Let me wait. 8 1 18. 9. Up to कहाँ तक? 18. 8 1 18. So how many numbers are there? 7 I think so 7 it is. तो 7 नहीं 6 होगा. They are 6. 3 1 just 3 and 3 6 are 18. Similarly
8 2 now Even higher. huh Numbers higher is 8 2 8 2. The first one is 6. In the second combination 8 2. For that 7 numbers will come total. okay, in this order you are saying 7 will come, Uh, 1 2 3 up to this. no, sir. 8 1 3. In this combination there are 6 numbers as you have written. Okay. Now in 8 2 there are 7 combinations. So 8 2. so that's what I'm saying. So there is nothing much more here which you cannot do. I will do same thing. 8 2 what then? 8 2 2. 8 2. 8 1 में और possibilities हो सकती हैं, multiple of 3 है ना, तो 8 plus 1 9, तो 8 1 I fixed. Okay, 8 2 There is 7 combinations. 8 2 के बाद क्या लिखूं? 2 2 नहीं ले सकते ना, we cannot repeat. 2. Okay. Then 8 2 5. So here also there is 6 combinations then in total. 8 2 8, but I cannot take 8. Then 8 2 sorry 10 10 के बाद सम 10 हो ही गया ना, हमें somehow multiple बनाना है 3 का, हाँ तो सर 8 to 11 होगा. 8 2 11, अच्छा 21 हो गया, ठीक है. 5 combinations are there. 8 2 10, तो 10 के बाद 12 बनाने के लिए 2 नहीं रख सकते, 15 बनाने के लिए आप 5, 7 plus 3 14. रुकिए 15, 18 बनाने के लिए आप 8 नहीं रख सकते, 11. नाउ 8 2 14. 14, 17. 8 2 17, 20 also. and 8 2 20. Okay, then similarly write 8 3. So 8 3. I done like 8 to 2 and 8 to 8. I added them. That's why it was wrong. So you do similarly, huh? There are total these many outcomes, and you see how many are favorable to E intersection F and how many are favorable to F only. Then just count it and divide. Okay. किनका रह गया अब? देखो बोलोगे तो डाउट होगा, नहीं बोलोगे नहीं होगा. ये है. So the next one after this. So this is this just you have to see the formula. So we derive the formula. What is problem in this question? Tell. So how to approach the covariance of x bar and t? T is t with n minus 1 degrees of freedom. Covariance of x bar and t. What is your t? T is Distribution is t with n minus 1 degrees of freedom. but they are not independent, na? So no problem. No independent, no problem. अभी क्वेश्चन पहले तो बताया था किसी को मैंने. So you know x bar and s are independent. Yes, sir. So open this, no problem. So what is E of t? It's not defined, sir. No, no. It's 0. Why it is 0 actually? So this whole quantity becomes 0. Now you just have E of x bar into t. T, what is t? T is actually x bar minus mu. So x bar minus mu into root n upon s. So x E of x bar है ना. Now x bar and s are independent. So expectation 1 upon s, there is direct formula to this. Expectation of s and it will become like some k1 times sigma. That you have to see what is that k1. That will be in terms of gamma function. And similarly there is a formula for 1 by s.
This is something 1 by k2 time 1 by sigma, something like this. You have to check. So that may be, no sure, you have to see. So now you have to see the formula. So this is the approach. So root n can be taken outside. So root n है ना, can be taken outside root n, and then x bar square minus mu x bar. Okay, sir, I'll try it now. So just use this formula and then just break it. Expectation of x bar square minus mu times expectation of x bar. That is mu only. It will be expression mu square. Just simplify it separately now. So I use the concept that x bar and s are independent. Okay, sir. Yes, next get out है. So last में मैंने किया 1 by 1 by 2. पर इसमें वो ऑप्शंस में e के फॉर्म में दे दिया सर कैसे मतलब एक्सपोनेंशियल है तो उसमें डायरेक्ट इंटीजर वैल्यू में आएगा ना. अच्छा, हाँ हो सकता है मिस्टेक, कोई दिक्कत नहीं, मिस्टेक भी रहते हैं कई बार. तो ये जो आपका क्वेश्चन है कि रैंडम वेरिएबल x है जिसका पीडीएफ एक्सपोनेंशियल विथ रेट 2 मतलब मीन 1/2, तो कह रहा है कि कैलकुलेट करो प्रोबेबिलिटी x माइनस म्यू का मॉड है मोर देन 1, ठीक, यूजिंग चेबीशेव्स इनइक्वालिटी. तो एग्जैक्ट प्रोबेबिलिटी थोड़ी आएगी, तो बाउंड आएगी ना. तो बाउंड क्या आता है इसका? सिग्मा स्क्वायर ओवर के स्क्वायर. हाँ, बाउंड तो ये रहता है. हाँ लेस देन 1 माइनस लेस देन इक्वल टू ले लेंगे तो सर म्यू की वैल्यू पुट कर देंगे, वहां से 1/2 पुट कर देंगे तो उसमें इक्वालिटी चेंज करके आ जाएगा और माइनस 3 आएगा. वो तो ठीक है. सो यहाँ से क्या आएगा? सिग्मा स्क्वायर बाई 1 स्क्वायर. सिग्मा स्क्वायर कितना है इसका? सिग्मा स्क्वायर इसका मीन 1/2, तो सिग्मा स्क्वायर 1/4 है. तो आ गया 1 माइनस 1/4 मतलब 3/4 ना. तो दिस क्वांटिटी इज लेस देन इक्वल टू 3/4 एक्चुअली आया है. बट एक्चुअली मुझे समझ नहीं आ रहा कि एग्जैक्ट प्रोबेबिलिटी कब से आने लगा चेबीशेव. वो तो एक बाउंड बताता है. अगर एग्जैक्ट निकालना है तो इसको तुम सॉल्व करोगे कि mod x minus 1/2 more than 1. So 1 minus probability mod x minus 1/2 less than 1. और यहाँ से so probability x minus 1/2 less than equal to 1 more than equal to है ना minus 1. So 1 minus probability x half minus 1 minus 1/2 and less than equal to 1 3/2, right? So अब इसको कैलकुलेट करो जरा. तो ये एग्जैक्ट प्रोबेबिलिटी देगा. ये तो बाउंड बता रहा है कि इससे छोटा आएगा. अब आ जाएगा ये फॉर्म. सो ये एग्जैक्ट एक्चुअली प्रोबेबिलिटी, ये चेबीशेव इनइक्वालिटी लाइन गलत लिखा है, उसकी जरूरत ही नहीं है. क्योंकि या हो सकता है कि अब तुम्हें ये देखना हो कि 4 ऑप्शन है, ये कितना आता है 0.75. या तो तुम ये हो सकता है ये चेक कराना चाह रहा हो कि इन 4 ऑप्शन में देखो कौन सा है जो 0.75 से छोटा है. तो हो सकता है एक ही ऑप्शन ऐसा होगा जो इससे छोटा होगा, बाकी सारे इससे बड़े होंगे, ये भी हो सकता है. सो वो देख लो एक बार या तो कैलकुलेटर यूज करके. एग्जाम में तो अलाउड नहीं, अभी तुम्हें करना होगा. तो ई की अप्रॉक्स वैल्यू है 2.718 ना. तो आप उससे अगर करेंगे तो एक तरीका ये हो सकता है कि हम 4 ऑप्शन में देखेंगे इससे छोटी कौन सी है, वो सुटेबल हो सकता है. अगर बाकी 3 इससे ज्यादा है तो वो आउट हो गया, तो ओनली पॉसिबल बचेगा. क्योंकि ये सब जो इनइक्वालिटी जो बाउंड बताते हैं किससे बड़ा किससे छोटा होगा, एग्जैक्ट आंसर तो नहीं बता सकता. तो एग्जैक्ट आंसर इस तरीके से निकालेंगे, अब हो जाएगा. हाँ, इसको इंटीग्रेट कर लो जी. हाँ, लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना है, तो मैं भी गलती कर रहा था क्योंकि नेगेटिव तो सपोर्ट में है नहीं जी. तो सपोर्ट कहाँ से स्टार्ट होता है? 0 से. तो हमें इंटीग्रेट सपोर्ट में करना है क्योंकि नेगेटिव का तो पीडीएफ 0 है, इसीलिए. तो यहाँ 0 से लेके आप करेंगे 3/2. हाँ, इस तरह से आ जाएगा, वो 2 कट जाएगा तो आ जाएगा. ओके, नेक्स्ट है. हाँ बताइए नेक्स्ट किनका है? हो गया ना?
अच्छा एक मिनट, रुको रुको ओके। हाँ नहीं नहीं, ग्रुप में भी ठीक है, ग्रुप में क्वेश्चन है ना, तो बस एक बार देखना पड़ेगा ना कौन कौन सा है। देखो जो ग्रुप में पहला क्वेश्चन है क्या है, द नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ कॉन्टिन्यूटी ऑफ द फंक्शन। तो उस दिन पहले तो डिस्कस किया था, किसने डिस्कस किया था ये आपका ही तो नहीं था, किसने पूछा था भाई? एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है मैं फिर से बता दूं, कुछ देर पहले बता रहा था लोगों को, जैसे कभी आपने डाउट पूछा हो पिछले एक साल में जितने डाउट पूछे हो, अगर डाउट क्लास के बाद आपने फिर से सॉल्व नहीं किया तो वो सेम डाउट आपको 6 महीने बाद फिर से डाउट ही रहेगा, वो आप तब भी नहीं कर पाओगे। लाइक अभी जो क्वेश्चन आप नहीं कर पा रहे हो, मुझसे डाउट पूछा मैंने सॉल्व कर दिया, आप भूल गए क्योंकि आपने खुद तो सॉल्व किया नहीं, 6 महीने बाद सेम क्वेश्चन आपका फिर से डाउट रहेगा। व्हाई? बिकॉज यू डिडंट ट्राई टू लर्न व्हाट वाज मिसिंग, ये चीज है। तो वो फिर से जो आप में मिसिंग था वो आप में अभी भी मिसिंग है, वो मैंने सॉल्व कर दिया बस, तो आप कन्विंस हो गए हाँ ओके है, लेकिन आपके दिमाग में वो चीज अभी भी फिट नहीं हुई है, तो 6 महीने बाद भी आपका डाउट रहेगा। सो द थिंग व्हेन यू आस्क वन क्वेश्चन, सो आपको करना क्या है, जो भी क्वेश्चन आपने डाउट पूछे हैं, बिकॉज यू हैव प्रॉब्लम इन दैट, सो आफ्टर क्लास यू जस्ट वंस सॉल्व दैट क्वेश्चन, जस्ट टू श्योर, आपको ये श्योर हो जाना, कंफर्म हो जाना कि यस आपने वो सीख लिया जो आपको क्लास से पहले नहीं आते थे, अब क्लास के बाद आपको वो आते हैं, और खुद से सॉल्व कर लोगे तो दिमाग में फिट हो जाएगा और ज्यादा टाइम तक आपको कॉन्सेप्ट याद रहेगा। वरना क्या अभी क्वेश्चन मैंने कुछ दिन पहले सॉल्व किया, मुझे तो आपने ही पूछा था, लेकिन क्या होगा वही क्वेश्चन आप सॉल्व कर दिया, भूल गए, फिर छोड़ दिए, फिर पता ही नहीं। बताइए फंक्शन कॉन्टिन्यूअस कब होगा, कोई फंक्शन इस तरह का कॉन्टिन्यूअस कब होता है? क्यू डैश, और यहां मान लीजिए 0 है जब x आपका रैशनल है, ठीक। तो ये कब कॉन्टिन्यूअस होगा, किस पॉइंट पे कॉन्टिन्यूअस होता है? कोई बताओ कैसे करते थे इस तरह के क्वेश्चन हम लोग, कॉन्टिन्यूटी कैसे चेक करते इस तरह के पॉइंट्स का? तो भाई जैम में तो खूब इस तरह के क्वेश्चन आए हैं, जैम में बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, तो भूल गए क्या सब कुछ जैम के प्रिपरेशन का? क्या ही फायदा है जब नहीं इस तरह क्वेश्चन जैम में खूब नहीं आए डिफरेंशियल कैलकुलस में, कि जहां रेशनल होता है पूछता था बताओ। हाँ सर ये मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर चेक करेंगे तो ये हर जगह कंटीन्यूअस हो रहा है, कैसे पता आपको हर जगह कंटीन्यूअस हो रहा है? कोई पॉइंट बताओ जहां पे कंटीन्यूअस हो रहा है। कोई रेशनल नंबर लेंगे तो नीचे वाला ही आएगा, इरेशनल लेंगे तो ऊपर वाला ही आएगा। ये तो सीख रहा हूँ, मतलब इसका आगे पीछे लेंगे। आप लोग पता है क्यों नहीं सीख रहे, इतने दिन पढ़ लिए अभी तक समझ नहीं आया ये सब चीजें, ये तो हालांकि मेरी गलती है क्योंकि मैं समझा नहीं पाया। बताइए कोई ऐसा पॉइंट बताओ जहां पे लगता है ये कॉन्टिन्यूअस है, आप कोई भी एक नंबर बताओ, कोई भी रियल नंबर। चलो 0 पे चेक कर लेते हैं। तो कोई फंक्शन 0 पे कॉन्टिन्यूअस कब होगा? लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, और हाँ लेफ्ट हैंड की यहाँ जरूरत नहीं है, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट तब जरूरत पड़ती है जब मोर देन 0 लेस देन 0 का चक्कर होता है यहाँ पे, तो यहाँ सीधा सीधा लिमिट लगाएंगे। तो ये सब बता रहा है कि आप लोगों ने सफिशिएंट क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं किए हैं, इसलिए अभी बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है जो आपको पता ही नहीं है। पता कब चलता, जब आप ये जो डाउट अभी आ रहे हैं इतने दिनों बाद, अगर यही आपके 8 महीने पहले या 6 महीने पहले यही सब डाउट्स आए होते तो तब क्लियर हो गया होता, और उसको आपने फिर से सॉल्व किया होता उस तरह के क्वेश्चंस, तो आज वो डाउट नहीं होते। सो द थिंग इज, आप 1 साल से हमारे साथ अगर कोई बच्चा पढ़ रहा है
और उसके डाउट्स अभी सीयूईटी एग्जाम के पहले आ रहे हैं। मींस व्हाट, ये सब जैम के दौरान भी आपको नहीं आते थे, जैम प्रिपरेशन के दौरान, जैम एग्जाम के दौरान। दिस इज द मिसिंग, मतलब ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है जो आपको क्लियर नहीं है अभी भी। सिंपल इज क्योंकि आपने इस तरह बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए तो पता ही नहीं चला आपको नहीं आते हैं। अब जाए क्वेश्चन मिला तो पता चला, चाहिए तो पता ही नहीं हमें। दिस इज द थिंग। सो लिमिट, और मुझे ये समझ नहीं आया जैम के पीवाईक्यू कैसे कर लिए सब, मुझे समझ नहीं आ रहा क्योंकि जैम के पीवाईक्यू में इस तरह के क्वेश्चंस थे। अब सॉल्यूशन देखते ये दिक्कत होता है, सॉल्यूशन देख के समाउ कर लिए, जब नया क्वेश्चन आता है दिमाग चलता ही नहीं है क्योंकि सॉल्यूशन तो है नहीं। अब इसी का सॉल्यूशन कहीं मिल जाएगा, तुम कन्विंस हो जाओगे हाँ सही लिखा हुआ, बिल्कुल सही है, लेकिन यही क्वेश्चन बाद में आएगा नहीं कर पाओगे। क्या करते थे? हाँ तो वही से दिक्कत है, क्यों हट गया? जैसे जो जैम में क्वेश्चन आते थे, पूछा था फाइंड द पॉइंट, अगर मैं पूछूं कि फाइंड द पॉइंट ऑफ कॉन्टिन्यूटी ऑफ दिस फंक्शन, तो क्या करते थे हम? तो रिवीजन नहीं किया तो दिमाग से हट गया। हर टॉपिक को रेगुलर रिवाइज करना होता है जितने सिलेबस के पार्ट्स हैं। कोई बताओ, तुम्हें से कोई बता सकता है भाई कि ये फंक्शन किस पॉइंट पे कॉन्टिन्यूअस होगा? इस तरह के फंक्शन जो रेशनल पे कुछ और है, इररेशनल पे कुछ और है, किस पॉइंट पे कॉन्टिन्यूअस होता है? How do we find the point of continuity in this kind of functions? That is missing. This you will learn in the process of trying. चलो मैं जीरो पे चेक करता हूँ इसको समझने के लिए। अब x टेंस टू जीरो है तो x जीरो के नेबरहुड में है। टेंस टू जीरो का मतलब x जीरो नहीं है ना, x जीरो के आसपास है। अब जीरो के मान लो, चलो जीरो के आसपास है, सो व्हाट डू यू थिंक जीरो के नेबरहुड में क्या हो सकता है? अब तुम्हारे हिसाब से क्या चूज करूं मैं, ये वाला x टेंस टू जीरो पे? जी तो बताओ, रेशनल होगा तो वैल्यू क्या होगी, इररेशनल होगा तो वैल्यू क्या होगी? फिर बताओ ये लिमिट की क्या वैल्यू आई फिर? फिर से ये लिमिट किसके इक्वल लिखूंगा मैं? जीरो, वन के इक्वल क्यों नहीं लिखेंगे? अरे पहले डिसाइड कर दो तुम, जीरो या वन या दोनों या कुछ भी नहीं, क्या होगा ये लिमिट? तुम मतलब बड़ा मुझे आश्चर्य हो रहा है तुम लोगों का कि अगर fx 1 ले तो 1 होगा, अगर fx 0 ले तो 0 होगा, तो लिमिट दोनों हो जाएगा। ऐसा कोई फंक्शन होगा जिसमें दो लिमिट होते हैं? फिर मैं पूछ रहा हूँ लिमिट की वैल्यू क्या लिखूं? व्हाट शुड आई राइट हियर? हाँ इसीलिए तो सब पूछ रहे हैं, इसीलिए तो गड़बड़ा है। अरे तुम कंटिन्यूटी में डाउट है तुम्हें, मैं तुम्हें लिमिट पूछ रहा हूं कि व्हाट इज द लिमिट ऑफ दिस फंक्शन एट जीरो? जीरो होगा। कैसे जीरो होगा? क्वेश्चन ये है, जीरो कैसे हो रहा है? अभी तुमने खुद ही कहा कि x जीरो के नेबरहुड में है, तो अगर रेशनल होगा तो जीरो आएगी, इररेशनल होगा तो 1 आएगी। और जब किसी फंक्शन के पास टू डिफरेंट सिचुएशन में दो लिमिट होती हैं तो हम क्या बोलते हैं? वो फंक्शन का लिमिट है कि नहीं है? मुझे बताओ, -1 की पावर n है, n टेंस टू इंफिनिटी पे क्या होती है? -1 की पावर n जो सीक्वेंस है उसकी लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी पे क्या आती है? मैं ये पूछ रहा हूँ जी। अब ये सब अभी जाके क्लियर नहीं, मतलब अब इसका तुम बोलोगे सर -1 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है। अगर n इवन है तो 1 हो जाएगा, n ऑड है तो -1 हो जाएगा। तो इस फंक्शन की लिमिट, ये सीक्वेंस की लिमिट दोनों होती है, ऐसा बोलोगे भाई? मधु तुमसे पूछ रहा स्पेशली। हाँ सर। तो क्या मतलब तुम ये कहोगे -1 की पावर n सीक्वेंस के पास दो लिमिट है, तो ये सीक्वेंस कन्वर्जेंट है इसका मतलब? नहीं सर, नहीं कन्वर्जेंट।
क्यों नहीं है कन्वर्जेंट? कन्वर्जेंट कब होता है? कोई सीक्वेंस या कोई फंक्शन कब कन्वर्जेंट होगा? ये सीक्वेंस कब कन्वर्जेंट होगी? और लिमिट क्या होनी? एक फंक्शन के पास 4 लिमिट हो सकता है या 2 लिमिट हो सकता है? थ्योरम है ना कि लिमिट मस्ट बी यूनिक। और अगर एक सीक्वेंस के पास 2 लिमिट है या 2 सब सीक्वेंस की अलग अलग लिमिट है तो वो सीक्वेंस क्या होती है? अब इसका बताओ, तुम्हें 0 भी लिमिट है 1 भी लिमिट है, तो इस फंक्शन की लिमिट को क्या लिखेंगे हम? अरे नहीं यार, तो बैठ के जाके थोड़ा क्वेश्चन सॉल्व कर लो। जब कोई क्वेश्चन फंस रहा है तो उसके पीछे जाके, जैसे ये क्वेश्चन फंस रहे हैं तो इस तरह के 2-4 क्वेश्चन ढूंढ के सॉल्व कर दो और सीखो। नहीं यार तो मुझसे तो एग्जाम में यही सब आ जाएगा, प्रोफेसर इतना मेहनत किया एग्जाम में आया ही नहीं, क्वेश्चन ही सॉल्व नहीं हुआ। कैसे सॉल्व होगा जब छोटे बेसिक कॉन्सेप्ट तुम्हारे हिले हुए हैं यहाँ पे कि 0 भी लिमिट है सर, 1 भी लिमिट है। अरे लिमिट इज यूनिक। हम पढ़ते हैं कि चाहे फंक्शन हो चाहे सीक्वेंस हो, इट हैज अ यूनिक लिमिट। अगर एक से ज्यादा लिमिट कहीं तुम्हें ऐसा लग रहा है दैट लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, सिंपल। अगर लिमिट एग्जिस्ट करेगी तो वो यूनिक होगी, तो एक फंक्शन की 2 लिमिट कैसे हो जाएगी? तो इसका लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट हो गया। अब बताओ ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है 0 पे? तुम्हारे किसी भी नंबर पे कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। तो समझो क्या हो रहा है एक्चुअली। यहां x 0 के नेबरहुड में है, तो 0 के नेबरहुड ये इंटरवल है। नेबरहुड एक इंटरवल है, इंटरवल रेशनल्स भी है इरेशनल भी है। यहाँ x 0 थोड़ी है, x 0 के अलावा उसके आसपास का कोई नंबर है, 0 नहीं हो सकता। अगर x यहाँ 0 होता तो ऐसा लिखा होता x इक्वल टू 0, तो टेंस टू की क्या ही वैल्यू रह गई फिर? तो टेंस टू का मीनिंग ये x इज नॉट 0। और ये सब 11th में पढ़ाए जाते हैं चीजें। अगर मैं पढ़ा रहा हूँ जो नेक्स्ट ईयर के बच्चे बेसिक्स में कि टेंस टू का मतलब होता है x इज नॉन 0 नंबर। तो नॉन 0 या तो पॉजिटिव या नेगेटिव होगा। अब यहाँ चूंकि मुझे इसमें डिसाइड करना है रेशनल में, तो x में भी रैशनल में भी इरेशनल। अब रेशनल है तो वैल्यू जैसे मान लो रेशनल है 0 आ गई, इरेशनल 1 आ गई, तो 2 डिफरेंट सिचुएशन में 2 लिमिट आ रही है। सो आंसर लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। और ये तुम्हें ठीक से नहीं पता अभी तक, या डिसाइड नहीं कर पा रहे हो। सो जब लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है तो क्या होगी? कंटिन्यूअस होगी। हाँ तो बताओ अब मेरा तो यही कंसर्न है ना, एग्जाम में तुम लोग कैसे डिसाइड करोगे क्या आंसर है? यहाँ तो मैं बता दे रहा हूँ तो मान लो यहाँ सर ने करा दिया हो गया। अरे सर ने करा दिया इससे तुम्हारा क्या हुआ? तुम सॉल्व करोगे तो तुम्हें आएगा। सो ये सब पहले भी इस तरह क्वेश्चन हमने डिस्कस किए एग्जाम का जब प्रिपरेशन कर रहे थे। और क्यों भूल गए? क्योंकि रिविजन नहीं किए तुमने। सो अब मैं सीधा सीधा आता हूं। दिस इज कॉन्टिन्यूअस एट x। किस पॉइंट पे कॉन्टिन्यूअस होता है? ये उसी पॉइंट पे कॉन्टिन्यूअस होगा जहां पे ये दोनों इक्वल रहता है। हमने बताया इक्वेट कर दो। जब भी ऐसे क्वेश्चंस आए होंगे हमने कहा होगा कि दोनों को इक्वल रख दो। सो मॉड x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब मॉड को हटा दो, x स्क्वायर माइनस 1 इज 0, क्योंकि मॉड हटने से क्या ही फर्क पड़ेगा 0 प्लस माइनस का। So x square is equal to 1. So x square is equal to plus minus 1. Sorry, x is equal to plus minus 1. So ये function 2 point पे continuous है only. This function is continuous at x is equal to 1 and this function is continuous at x is equal to minus 1. 0 पे चेक कर रहे थे, continuous नहीं आया। So अगर तुम इसी को 1 पे चेक करते हैं, 1 पे चेक करके दिखा देता हूँ मैं इसी function को। लिमिट x टेंस टू 1 है ना, fx। अब x 1 के नेबरहुड में है, सो x 1 के नेबरहुड में है तो 1 नहीं है x इज नॉट 1 के नेबरहुड में है, तो 1 से थोड़ा ज्यादा थोड़ा कम हो सकता है। सो अब 1 के नेबरहुड में रेशनल भी हो सकता है इरेशनल भी। सो जब x रैशनल है तो वैल्यू 0 आ जाएगी। x जब इरेशनल है, लेकिन x इरेशनल है बट उसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू 1 है, आई मीन x अप्रोच कर रही है 1 को, तो x इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1 बट नॉट एग्जैक्टली 1 एक्चुअली। तो वो x एक इरेशनल नंबर है व्हिच इज वेरी क्लोज टू 1।
तो जब तुम वैल्यूज निकालते हो तो वो पुट कर देते वैल्यू, क्योंकि लिमिट का मतलब ही वही है। लिमिट का मतलब वी आर फाइंडिंग अप्रोक्सीमेट वैल्यू, यही लिमिट का रेलेवेंस है एक्चुअली। तो x इज इरेशनल अप्रोचिंग टू 1, तो 1 रख दो x से, 1 माइनस 1 0। अब देखो ध्यान से, अब यहाँ 0 1 आ रहा था, दो डिफरेंट वैल्यू आ रही, दैट्स व्हाई लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट आई। यहाँ क्या है, चाहे रेशनल हो चाहे इरेशनल हो, क्या मिल रहा है, सेम नंबर, सो इसकी लिमिट आ गई 0। तो ये सब तो बेसिक लिमिट के कॉन्सेप्ट्स हैं। सो रेशनल लिमिट 0 है, f1 निकालो। अब यहाँ ध्यान दो, यहाँ f1 का मतलब होता है x इज एग्जैक्टली इक्वल टू 1, यहाँ ये मतलब है x इज एग्जैक्टली 1, तो fx में x एग्जैक्टली 1 है, 1 इज अ रेशनल नंबर, सो इस कैटेगरी में आएगा वैल्यू 0। सो फंक्शन की लिमिट एंड फंक्शन की वैल्यू इक्वल है, दैट्स व्हाई इट इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 1। सेम सिचुएशन होगा -1 पे, दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू -1, 0 पे चेक करके दिखाया कॉन्टिन्यूअस नहीं है, तो 1 और -1 को छोड़ के कहीं भी कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा। पूछो और कोई कास्ट अभी कंफ्यूजन बचा है तो पूछो, एटलीस्ट एग्जाम में इस तरह क्वेश्चन आए तो कर पाओ ये सब। मतलब मेरा भी कंसर्न ये है कि इस तरह का डाउट्स अभी क्यों आ रहे हैं, ये 6 महीने पहले आपके क्यों नहीं आए, आपकी जो तैयारी अभी चल रही है 6 महीने पहले से तैयारी क्यों नहीं थी, तो अभी और बेटर करते हैं ना तुम। इस तरह का डाउट्स, मतलब बेसिक डाउट्स आने अलग-अलग सोच रहे थे ना, इसीलिए। हाँ, तो जब भी रेशनल जैसा फंक्शन डिफाइंड हो, उन्हीं पॉइंट पे कॉन्टिन्यूअस होगा जहां ये दोनों इक्वल होंगे, दैट विल बी इक्वल। कोई बात नहीं, चलिए नेक्स्ट बताइए। जो आपके नेक्स्ट डाउट उसमें क्या है देखिए, लेट f be a real function defined by this, f is differentiable on the real line, then product ab is। अब देखो जैसे इस तरह के क्वेश्चंस है तो एक बार तो फिर से सॉल्व करो, इस तरह क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं। अब मुझे पता नहीं तुम लोग अभी क्यों डाउट आ रहा है ये, इसका पता है आंसर, इसमें इसको कंफर्म करना था जो आप लिख रहे हैं। हाँ हो सकता है गलत हो आंसर, कोई दिक्कत नहीं, बट आपको एटलीस्ट आपके जो कॉन्सेप्ट्स आपने सीखे हैं, जो अप्रोच सीखे हैं, उस पर भरोसा होना चाहिए कि जो आप कर रहे हो वो सही कर रहे हो। अब अप्रोच ही नहीं पता, कॉन्सेप्ट ही नहीं पता तो प्रॉब्लम है ना, ये चीज है। आंसर गलत है तो हमारी गलती, आपकी कोई गलती नहीं, एग्जाम में आप सही करके आओगे, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट ही नहीं पता, अप्रोच ही नहीं पता, तो कोई फायदा, फिर तो एग्जाम में आप नहीं कर पाओगे, तो वो सीखना है। अब डिफरेंशिएबिलिटी का एक क्वेश्चन है, x, ये सब क्लास 12 क्लास के एनसीईआरटी में भी आप जाकर देख सकते हो, क्लास 12 एनसीईआरटी चैप्टर 5 कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी चैप्टर का नाम है। हाँ सर। एक तो x होगा, ये लिखने में थोड़ा गलती किया है, चलिए ठीक है। तो इसमें क्या बताना है मुझे कि ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है ना, तो हम लोग सीधा सीधा f डैश x निकाल लेते हैं, ठीक है। तो सीधा सीधा f डैश x निकाल देंगे, तो तुम डेफिनेशन से भी जा सकते हो, बहुत टाइम लगेगा, वो क्या करोगे तुम यहाँ पे निकालोगे f डैश -1, ठीक है ना, फिर f डैश 1, और तो इसकी लिमिट एग्जिस्ट करेगी। तो दूसरा एक अप्रोच ये है जो मैं बता रहा हूँ तुम्हें, दो तरीके हैं इसके सॉल्व करने के, तो ये करूँ मैं, इसका तरीका ये है कि लिमिट x टेंड्स टू -1 fx माइनस f माइनस 1 अपॉन x प्लस 1, और f डैश 1 का मतलब लिमिट x टेंड्स टू 1 fx माइनस f1 अपॉन x माइनस 1। अब ये लिमिट अगर एग्जिस्ट करेगी तो फंक्शन डिफरेंशिएबल है, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है फंक्शन डिफरेंशिएबल है, तो लिमिट एग्जिस्ट करेगी, ये मुझे गिवन है क्वेश्चन में। तो लिमिट कब एग्जिस्ट करेगी, उस सिचुएशन के हिसाब से आपके आंसर आ जाएंगे। अब ये लिमिट कब एग्जिस्ट करेगी, आपको लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट निकालना पड़ेगा, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, उससे भी सॉल्व करके निकाल सकते हो आप। दूसरा तरीका है जो मैं कर रहा हूँ, देखो डिफरेंशिएट कर लो, a 2x माइनस a, x लेस देन -1, x मोर देन इक्वल टू -1 लेस देन इक्वल टू 1, और x मोर देन 1, ठीक। तो अब क्या करना है हमें कि a 2x और -a हो गया, तो बताओ -1 पे ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस कब होगी, मतलब डेरिवेटिव कॉन्टिन्यूटी से बात कर रहा हूँ, डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगी तो यहाँ
कॉन्टिन्यूअस ही होगी। हाँ, अगर डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगी तो कॉन्टिन्यूअस होगी। ठीक है, हाँ तो मैं बोल रहा हूँ मेरा ये डाउट था, जो x स्मॉलर देन -1 है उसके नीचे तो फंक्शन एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, मतलब 0 होगा ना fx। एक मिनट कहाँ पे ये? हाँ तो क्यों? वहाँ पे 0 होना चाहिए ना। क्यों 0 होगा? x ये स्मॉलर में तो इसमें कहाँ लिखा हुआ ये CDF है? कहीं लिखा है CDF है? पीडीएफ नहीं, पीडीएफ की बात कर रहा है। तो PDF इन्हें कहाँ लिखा है PDF है? तो सर अब ये हमने अरे कैसा तो पीडीएफ ही है ना। ये कैलकुलस का क्वेश्चन है, तुम प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन समझ रहे हो? ये डिफरेंशियल कैलकुलस का क्वेश्चन, सो प्रोबेबिलिटी से कोई रिश्ता नाता नहीं है इस क्वेश्चन का। सर फिर रहने दीजिए, हम इसको प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन समझ। हाँ, अज्यूम नहीं करना, पढ़ो एक एक लाइन क्या क्या लिखा है। ये सिंपल एक कैलकुलस का क्वेश्चन है, इसको कोई प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिक्स हाँ लेना तो सर नहीं। फिर हो जाएगा, रहने दीजिए। इसमें देख लो, अब कर दिया, बता ही देता हूँ। माइनस ये a इज इक्वल टू -2 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से कैसे x को अगर यहाँ -1 रखोगे तो -1 पे लेफ्ट हैंड लिमिट a है, राइट हैंड लिमिट -2, तो a -2 हो जाएगी। 1 पे -a है, 1 पे 2 हो जाएगी, तो माइनस। दिस इज द आंसर। सो ये फंक्शन है। अच्छा, ये अभी तो मैं डिफरेंशिएबिलिटी यूज किया, ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो कॉन्टिन्यूअस भी होगा। अब कॉन्टिन्यूअस होगा तो यहीं पे काम कर लो, तो कॉन्टिन्यूअस पे लेफ्ट हैंड लिमिट पे वैल्यू कितनी आ जाएगी? तो यहाँ लेफ्ट हैंड लिमिट पे आ जाएगी -a + b, राइट हैंड लिमिट कितनी आ जाएगी? 2। अभी a निकल गया मेरा -a, सो 2 + b = 2, तो b = 0 आ जाएगी। ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो कॉन्टिन्यूअस भी होगा, तो कॉन्टिन्यूटी यूज किया तो ये इक्वेशन बनी, और डिफरेंशिएबिलिटी यूज किया तो ये आई। कोई बात नहीं, देखो कोई बात नहीं, गलतियां होंगी, बट जैसे कोई क्वेश्चन पढ़ो तो थोड़े एनालाइज करो कैसे, क्या है इसमें, क्या सीखना, मतलब क्या करना है। 2-3 बार पढ़ो क्वेश्चन को, जब क्लियर नहीं होता तो। और एंड टाइम तो थोड़ा रहता है, डर रहता है, लेकिन अभी तुम्हें करना क्या है, जो क्वेश्चन नहीं हो रहे उसको दोबारा फिर से ट्राई करो। एक टेस्ट में गलती हो गया, ज्यादातर बच्चे ऐसे ही करते हैं ना, गलत हो गया बस चलो पूछ लेते हैं गलत। अरे वो तुम्हें आते हैं ऑलरेडी, तुम अगर दोबारा सॉल्व करोगे तुम्हें ऑलरेडी आते हैं वो क्वेश्चंस। गलतियां हो जाती है ड्यूरिंग टेस्ट, उसके बाद सॉल्व करो, तुम्हें ज्यादातर क्वेश्चन खुद ही कर दोगे। इसमें क्या है कि an दे रखा है, ये तो जैम 2018 का है, हमने सॉल्व किया था जैम के दौरान, ये थोड़ा लेंदी था। हाँ सर जो CN वाला टर्म है वो अल्टरनेटिव के फॉर्म में आ रहा है। तो बस डाउट ये था, तो उसे कन्वर्जेंट होना चाहिए था, ये तो नॉट कन्वर्जेंट है। हाँ, इसका कोई तरीका है, मैंने सॉल्व कराया था लास्ट टाइम, तो इसको पुट करेंगे ना, ये क्वेश्चन हमने सॉल्व कराया था क्वेश्चन पहले ना, तो इस समेशन Cn की बात करें ना कन्वर्जेंट का, तो लिमिट Cn की निकालो, कितनी आएगी? आई थिंक लिमिट ना Cn की जो लिमिट है वो नॉन जीरो आ जाएगी यहाँ पे शायद, ये एक तरीका है। और अगर ये नॉन जीरो दिखा दिए तो डाइवर्जेंट हो जाएगा, तो ये लिमिट Cn की नॉन जीरो आ जाएगी। कैसे आएगी तो वो दिखाना पड़ेगा। नहीं, ये क्वेश्चन सच में थोड़ा डिफिकल्ट है, तो और यहाँ k की लिमिट है, ये चीज है। अब इसको हमें समहाउ ये दिखाना है कि इसकी लिमिट 0 नहीं आएगी, अगर ये दिखा दिए तो काम हो जाएगा। ये n-k है,
ठीक। और देखो ये ए एन के टर्म में है ना, तो ए एन यहाँ के पे समेशन लगा हुआ है, तो ये के पे समेशन है, ये समेशन तो के पे है ना, तो अगर मैं लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी लगाता हूं तो क्या होगी, ये तो चलो बाहर निकाल लो, इसको बाहर निकाल सकते हो। बच गया ना। तो अभी यहां से क्या होगा, इसको तुम बाहर निकाल सकते हो। बताओ इसमें लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी लगाओ, तो लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी लगाओगे तो क्या होगा ये, तो नहीं जीरो नहीं आएगा, यही तो दिखाना है तुम्हें कि नॉन जीरो आएगा, यही चैलेंज है यहाँ पे। तो मैं बस ये बता रहा हूँ, ये थोड़े ट्रिकी क्वेश्चन है। ये जो है ना ये नॉन जीरो आएगा, तो चेक करो इसको। जैसे n टेंड्स टू इंफिनिटी लगाने का मतलब है यहाँ पे भी n आ जाए, यहाँ पे भी इंफिनिटी, यहाँ पे भी। इसका प्रूफ करने का अलग तरीका है, मुझे टाइम लगेगा, ये लास्ट टाइम किसी ने डाउट पूछा था। ये एक्चुअली मैं तुम्हें बता देता हूँ, ये जैम एमए आई थिंक 2018 का क्वेश्चन है या 2021 का है, तुम ऑनलाइन देख सकते हो, या इसका मैं सॉल्यूशन भेज दूंगा। मैंने किया हुआ है, अभी करूँ फिर टाइम लगेगा। लास्ट टाइम भी नेहा ने पूछा था तो काफी टाइम लगा था, बट सॉल्व हो गया था उस समय। फिर सॉल्व करूंगा कि फिर से वही ना डिवीजन वाली चीजें हैं, रिवीजन नहीं करेंगे भूल जाएंगे, सेम जो आपका हाल है सेम मेरा भी है। तो जो चीजें रिवाइज होती रहती है वो दिमाग में रहती है, अब इसका फिर मुझे वही वापस उसी प्रोसेस से सोचना पड़ेगा, तो उतना ही टाइम फिर से लगेगा जितना लास्ट टाइम लगा था, क्योंकि एग्जैक्टली भी दिमाग में नहीं है क्या ट्रिक। हाँ तो इसमें तो मैं बता दूंगा, इसका ना देखता हूँ, भेज दूंगा। ये जैम एमए का मिल जाएगा, सॉल्यूशन है तो देखना पड़ेगा, अभी करूंगा टाइम लगेगा मुझे। सो बट यही चैलेंज है यहाँ पे कि तुम दिखाओ लिमिट नॉन जीरो है, लिमिट नॉन जीरो है तो समेशन सी एन डाइवर्जेंट हो जाएगा, ये चीज है। तो यहाँ ये इसका ट्रिक है, इस क्वेश्चन का तरीका है। चलिए नेक्स्ट बताइए जी, इनका डाउट रह गया। और भी थे, एक दो कहाँ है, इसमें तो दिख नहीं रहा मुझे, आपने मुझे ग्रुप में भेजिए, ग्रुप में। हाँ स्केल पैरामीटर बोला है, क्या बोल रहा है, डेल्टा को बोल रहा है, रुको वन बाय क्लास एक स्टार्ट करवा देता हूँ मैं, 1 मिनट।